I think we have starting from source code to preprocessor, and then preprocessor expanding the code goes to the compiler, and then compiler assemble the code goes to assembler, and then object code is generated which goes to linker, and linker collects all the modules of different modules of the different component of the program, and then connect it and then provide it to the loader, and then loader execute the program. So the in the first phase, that is .c file, then from .c preprocessor expand it code, this code, then it becomes .i, then in compiler it becomes .s. Compiler create assembly a machine understandable code, and then the assembly code assembler create a object code, it is become .obj file, and then the linker make it executable file, so it becomes .exe file. So from .c to .i, then .s, then .obj, and then .exe. This is the different phases of the compilation process in a general C programming. So just a minute. Okay, so that is the way how a C programming works, and then we have seen this thing. We can see that it is .c file, uh, hello.c, and then it becomes hello.i, and then it becomes hello.s, and then hello.obj, and then hello.exe. So linker makes it hello.exe file. Okay. Now we comes to the definition of operating system. So what we know about operating system? It acts as an interface. So it acts as a interface. So that is an important terminology. It acts as an interface between what? Between the user and the computer hardware. So it's like an interface between the user and the computer hardware. So here we say user, and here we say hardware. So it takes the information from user and then performs it with the help of software, and then performs and then give the output, and then output can be also viewed by the user. So this is how these things works. Okay, so first is user one, and then different users are there. Uh, Different users are there, and then what they use, they access the softwares. Users access the softwares, and then the different softwares like software application. We will see what do you mean by system software. You will see in detail in your subject operating system in forthcoming semester. Now we understand a brief idea. Software, which is means of system software, then application software, and then operating system. So what do you mean by system software? Like you see in CMD. So if you if like, sorry. So like, what do you mean by system software? Is CMD, like you command prompt, and then uh, task bar, and then defragmenter, different types of which are already present. It is already present in the computer. I can show you right now. If you can see, just a minute. I will share the whole screen. Yeah. So
Here, if we type RUN, then this run interface comes. So here we can run many utilities which are inbuilt. Like if we want to see about disk, we type dskmgmt.csc. We enter. Sorry, is dev management. Sorry, it is device management.esc. So it will show us all the devices which are connected to the system. I hope you can see computer, disk drive, display adapter, floppy drive, then human interface device, then keyboards, all these things. So this interface is inbuilt in the system. So this is system software. I hope it is getting clear. And application software, like I have installed different kinds of softwares like Microsoft Office, and then Microsoft Office, and then maybe some social networking like Telegram or Zoom. Different kinds of software I've installed. I've installed Notepad++, then Chrome. These are application softwares, and whole things. These all this application system, application softwares, and the system software which are connected to the operating system. So this whole both the thing are connected to the operating system. So what operating system takes command from them, wants the understand the operation, what the operation is required, and then performs that operation, and then now the operating system, when it performs, it requires the services of CPU and RAM and IO devices. CPU already studied, control unit and arithmetic logical unit, which performs different arithmetic operation like addition, multiplication, subtraction, division, then logical operation or and not, and different kinds of operation. RAM is primary memory, we'll see in detail, random access memory, where the instruction or the processes which are going to be executed currently, it is a storage device, so it is stored here in RAM. And IO device like mouse, keyboard. So operating system takes helps of these hardwares and then performs the operation using also the system software and application software, and gives the output to the user. Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir, clear. Okay. Then we go below, and then we see some of following are some of the important function of operating system: memory management, process management, process management, file management, memory management, which we know as RAM and ROM, processor management, scheduling algorithm, device management. We usually see file management, different kinds of files, security, then control, job accounting, error detection, like different errors coming in computer, coordination between other softwares and users. So these are the different operation performed by operating system or OS. So apart from Windows or Mac OS or Linux, is there any other operating system? Can anybody tell? Can anybody tell, apart from Windows, Mac OS and Linux, is there any other operating system? No. Yes. No. Hello. Yes. Just speak loudly. Hello. Sir, Hello. Android. Yes, ma'am. Yes, sir. Hello. Hello. हेलो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Hello. हाँ, कोई बता सकता है क्या कि विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ओएस छोड़ के और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं है? सर दो बहुत सारे. आप बताइए. बताइए कोई. Phoenix OS. ओके.
और कुछ? एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। जो हम लोग लैपटॉप और इसमें यूज करते हैं, ऐसा कुछ कौन सा है? लैपटॉप में ही है सर, लैपटॉप या पीसी के लिए एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। और जैसे उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन नाम क्या है? नाम कुछ है? फीनिक्स ओएस। फीनिक्स ओएस। ओके। और कुछ? सर लिनक्स के बहुत सारे वर्जन हैं लाइक। मैंने लिनक्स बोल दिया है। लिनक्स, विंडोज और मैक, ये छोड़ के आपने फिनिक्स बोला। और कुछ? अच्छा, आपने सोलारिस नाम सुना है? सोलारिस। नो सर। ये सोलारिस एक No, ऑपरेटिंग sir. सिस्टम है जो प्रिमिटिव है, बहुत पहले यूज होता था। अभी भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, बिकॉज दीज आर मेनली कमांड बेस्ड। सो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे इसका एक अपाचे है, क्रोम ओएस, आपने नाम सुना है? क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम सर किसी ने सुना है क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वो भी एक क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल ने बनाया है। तो वो भी काफ़ी सिस्टम यूज होता है, हालांकि इतना पॉपुलर नहीं है अभी इंडिया में। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वी डील विथ। नाउ वी कम्स विथ टर्म्स विथ मेमोरी मैनेजमेंट। सो मेमोरी, जो कंप्यूटर में जो मेमोरी रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, दिस कैन बी ब्रॉडली categorized in primary memory or secondary memory. So primary memory is, other name is main memory. So primary memory का other नाम है main memory, and main memory provides a fast storage that can be accessed directly to the CPU. So इसका जो term है वो है कि it provides, sorry, so it is जो term है उसका ये है कि it provides fast storage, इसीलिए मेन मेमोरी यूज होता है, जो कि हम लोग रैम नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म बहुत से लोगों को पता होगा, रैंडम एक्सेस memory. So these are the different main memory which provides a fast storage that can be accessed directly by the CPU. Okay, so then main memory provides for a program to be executed, it must be in main memory. An operating system does the following activities for, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हम लोग प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो इनिशियली वो मेन मेमोरी में या फिर प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है और उसको पहले एग्जीक्यूट होता जाता है। तो जितना चाहिए उसके लिए ही उतना आता है। मतलब अभी एक प्रोसेस, जरूरी नहीं कि एक प्रोसेस के हर एक पार्ट, मान लो एक प्रोसेस में थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है कमांड से, मतलब एक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। प्रोसेस मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका राइटिंग ऑपरेशन, रीडिंग ऑपरेशन, या फिर म्यूजिक ऑपरेशन, या फिर वीडियो ऑपरेशन, गेमिंग ऑपरेशन, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसे लाखों इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड या कोड लिखना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि हर एक टाइम में, मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में वही लाखों इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि पहले 500 या पहले 1000 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसका काम हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट 1000 होगा। तो ऐसा करके एक प्रोसेस का भी कुछ पार्ट हो सकता है जरूरी है, तो वो प्रोसेस का जो पार्ट जरूरी है उस पार्ट को रैम में हम लोग लाते हैं या फिर प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में लाते हैं, और बाकी पार्ट को हम एज इट इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में रखते हैं। और जब उसका काम हो जाता है तो फिर से रैम को फ्लैश करके जो चीज़ अभी चाहिए तो वहाँ से हम लोग हार्ड एक्सटर्नल मेमोरी से हम लोग लेके आते हैं रैम में और उसको ऑपरेशन करते हैं। तो ये जो कौन सा प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा चीज़ बाद में एग्जीक्यूट होगा, इस चीज़ को कौन सा प्रोसेस का, तो इसके लिए दो टेक्निक यूज होता है जो आप लोग पढ़ोगे। एक होता है जिसको हम लोग पेजिंग बोलते हैं। होपफुली आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पता है तो अच्छा बात है। और दूसरा बोलते हैं सेगमेंटेशन।
तो दो तरीके होते हैं जो डिफाइन करता है कि प्रोसेस के which part of the process will execute. तो ये जो ये है पेजिंग और सेगमेंटेशन, ये एक दो टाइप रहते हैं, उसमें भी अलग टाइप रहता है। एक होता है डिमांड पेजिंग, ये आप लोग जब ओएस डिटेल में पढ़ोगे तब उसमें रहेगा। एक रहता है डिमांड पेजिंग, एक रहता है वर्चुअल मेमोरी। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे एक प्रोसेस का कुछ पार्ट हमें चाहिए, वो हम रैम में लाते हैं, तो कौन सा पार्ट चाहिए, वो कैसे डिफाइन होता है, कैसे वो रिप्लेस होता है। एक पार्ट का मान लो पहले 1000 इंस्ट्रक्शन लाना है, मान लो एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड है और ये तुम्हारा रैम है। तो इसके पहले जितना पार्ट तुम्हें लाना है वो काम हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो वापस जाएगा और फिर से दूसरा पार्ट आएगा और फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो इसका कौन सा पार्ट रैम में लाना है, कौन सा पार्ट उसके बाद रिप्लेस कैसे होगा, कौन सा पार्ट फिर से रैम में आएगा, ये सब चीज़ें जो डिफाइन करता है। तो ये जो टेक्निक्स है मैंने जो बताया, पेजिंग, सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, ये सब टेक्निक डिफाइन करता है। ये समझ में आया क्या सबको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। सो अभी एक टर्मिनोलॉजी आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो नाम से पता चलता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ काम कर रहा है रैम में या फिर कहीं पे भी। मतलब मान लो जैसे तुम मूवीज देखते हो या फिर वीडियोस देखते हो और ऑडियो चलाते हो और कुछ दूसरा वर्क भी कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, अलग अलग प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बोलेंगे, टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इस मल्टी प्रोग्रामिंग में जो टेक्नोलॉजीज होता है इसको बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो इस प्रोसेस शेड्यूलिंग में मतलब डिफाइन करता है कि व्हिच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा, या फिर कौन सा ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ऑपरेशन बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो ये प्रोसेस शेड्यूलिंग डिपेंड करता है। तो उसका बेसिक काम क्या है, कीप्स ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। द प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ये जो टास्क है ये नाम दिया गया है जो कि कंट्रोल करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले, कौन सा ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ऑपरेशन बाद में एग्जीक्यूट होगा। इस चीज को ट्रैफिक कंट्रोलर बोला जाता है। तो मतलब वो जो डिफाइन, जैसे ठीक करता है कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इसको ट्रैफिक कंट्रोलर किसका हेल्प लेता है, वो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का हेल्प लेता है कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा पहले, कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा। एलोकेट द प्रोसेसर टू द प्रोसेस। तो वो प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए जो भी प्रोसेसर का जरूरत है, मल्टी प्रोसेसर आपने देखा होगा, क्वाड कोर, डुअल कोर, बहुत सारे रहते हैं। तो वो एक प्रोसेस के लिए कौन सा प्रोसेसर या प्रोसेसर का कौन सा पोर्शन चाहिए, तो वो एलोकेट करता है। दूसरा है डीएलोकेट प्रोसेसर व्हेन प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो जो प्रोसेसर डीएलोकेट प्रोसेसर व्हेन प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो जब प्रोसेस का काम हो गया उसके बाद उसको डीलोकेट कर दिया जाता है प्रोसेसर को, और जो प्रोसेस अभी करेंटली रन कर रहा है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये चीजें प्रोसेसर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस, मतलब ये चीजें ट्रैफिक कंट्रोलर डिपेंड करता है। वो एलोकेट करता है कोई भी प्रोसेस के लिए प्रोसेसर, और डीएलोकेट भी करता है। तो मैं वही बताता हूँ। पहला पहला ये जो काम करता है वो है ट्रैफिक कंट्रोलर, ये काम करता है। और ये जो एल्गोरिदम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग या एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो हमने उस दिन दिखा था, किसी को याद है कि कौन सा प्रोसेस शेड्यूलिंग हमने एक्सप्लेन किया था? कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में हमने बताया था, किसी को याद है? कुछ एल्गोरिदम होता है जो डिपेंड करता है कि कौन सा पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में। किसी को याद है क्या?
ओके, आप लोग अगर याद नहीं, मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक रहता है जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो वो जो प्रोसेस पहले बार सीपीयू में आता है उसको एग्जीक्यूट होता है। एक होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है उसको वो पहले एग्जीक्यूट होता है। एक होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मतलब हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दिया जाता है, जो प्रोसेस का प्रायोरिटी हाई है वो एग्जीक्यूट होता है। एक होता है राउंड रोबिन, मतलब एक प्रोसेस का कुछ पोर्शन पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद दूसरे प्रोसेस में जाता है, दूसरा प्रोसेस का कुछ पोर्शन एग्जीक्यूट होता है, फिर से पहले प्रोसेस में आता है, ये करता है। तो ऐसे बेसिकली जो 4 इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये सब 4 में है। और भी बहुत सारे हैं उसके सब टाइप्स, लेकिन ये सब डिटेल में आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सब्जेक्ट रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम 6 सेमेस्टर में, तो उसमें आप ये सब एल्गोरिथम के बारे में डिटेल, इसके प्रोग्रामिंग लिखना, ये सब आप सीखोगे वहां पे। ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा काम क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी अपने पास डिवाइस है, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को दिखाया था, मैंने रन में जाके डिवाइस मैनेजर के कमांड रन किया, तो ये सारे डिवाइसेस तुम्हें दिख रहे होंगे। तो ये सारे डिवाइसेस को मैनेज करना है, कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा, ये चीज़ें डिवाइस मैनेजर डील करता है। तो डिवाइस मैनेजमेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रेस्पेक्टिव ड्राइव्स. It does the following activities for device management. Keep track of all devices, program responsible for also tasks known as IO controller. ध्यान रहे ये सब क्वेश्चन आ सकता है वाइवा में या फिर कहीं पे भी क्लास में भी। ट्रैफिक कंट्रोलर, IO कंट्रोलर क्या है, तो वो पता होना चाहिए। Decides which process gets the device when and for how much time. Allocates the devices in efficient way and deallocate devices. Allocate the devices in efficient way and deallocate devices. ठीक है। नेक्स्ट मतलब जो भी डिवाइसेस के लिए जो भी काम है तो उसको वो हैंडल करता है। जैसे मान लो कि अभी मैं यूएसबी से काम कर रहा हूँ, तो मैं यूएसबी में मान लो बहुत सारे रूट डिवाइस होंगे, तो उसका जैसे मैंने एक पेन ड्राइव डाला है, अभी 2 पेन ड्राइव डाला है, तो पेन ड्राइव 1 और पेन ड्राइव 2, ये 2 पेन ड्राइव मैंने डाला है। तो अभी दोनों ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी देखना यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर का काम है। इसको अनइंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करता हूँ, जैसे मान लो, तो यहाँ पे मेरे इतने सारे तुम्हें दिखेंगे यूएसबी कंपोजिट डिवाइस, जो मेरा अभी पेनटैप का कनेक्शन है, ये रूट हब जो कि ये चेक करता है, इंटेल का जो भी मैं कीबोर्ड या इसे भी यूज कर रहा हूँ तो उसके कंट्रोलर, ये सब बताता है वहाँ पे। ये अलग अलग डिवाइस मैनेजमेंट, अलग अलग डिवाइसेस के बारे में जो भी कनेक्टेड है सिस्टम से, उसके बारे में बताता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड A file system is normally organized into directories for easy navigation and usage. These directories may contain files and other direction, and operating system does the following activity. तो normally वो कंप्यूटर में जो हमारा 2 ड्राइव है, सी ड्राइव, डिस्क ड्राइव, उसमें जो डेटा हमने रखा है और डेटा जो डी ड्राइव में मैंने डेटा रखा है, तो इस ड्राइव के बारे में, उसको मेंटेन करने के बारे में बोल रहा है। तो डेटा वो एक्चुअली ये सिर्फ ड्राइव के बारे में नहीं, अगर तुमने डेटाबेस सुना है नाम, तो डेटाबेस मतलब कंप्यूटर का जितने भी डेटा रहता है कोई भी प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में, तो वो सारे डेटा एक सॉफ्टवेयर में स्टोर रहता है। तो वहां से एफिशिएंटली उस डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, अपडेट करना, वो सब काम होता है। तो वो डेटाबेस को भी काम करता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे तुम लोग डेटा में पढ़े होगे, सॉरी, ओके, तो जैसे तुम लोग अभी डेटाबेस जब पढ़ोगे तब उसमें आएगा एक प्रॉपर्टी रहता है, एसिड प्रॉपर्टी, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी।
आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो ये चार प्रॉपर्टी कोई भी डेटाबेस जहाँ पे स्टोर रहता है तो चार प्रॉपर्टी हमेशा मेंटेन होना चाहिए। तो ये वो चेक करता है कि चार प्रॉपर्टी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या है? एटोमिसिटी, मतलब जब भी डेटा स्टोर रहे तो जिस फॉर्म में स्टोर रहे, अगर क्लोज हो जाए तो क्लोज होने के बाद ओपन होने के बाद भी उसी फॉर्म में डेटा स्टोर रहे। आइसोलेशन मतलब डेटा को अगर एक जगह से हम दूसरा जगह ट्रांसफर करें तो उसमें डेटा में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। उसका ड्यूरेबिलिटी, मान लो डेटा हम लोग स्टोर किए हैं कोई भी ड्राइव में, फोल्डर में, वो और अचानक पावर शट डाउन हो जाए, लेकिन पावर आने के बाद भी अगर फोल्डर खोलते हैं तो उसमें डेटा मिलना चाहिए। और कंसिस्टेंसी मतलब जब डेटा से ऑपरेशन किया जाए तो उसमें डेटा जितना भी टाइप का जो भी डेटा ये रहता है, तो जब डेटा उसमें ऑपरेशन करते हैं तो वो एज इट इज हमें डेटा मिलना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में और पढ़ोगे तो ये फाइल सिस्टम या डेटाबेस सिस्टम का प्रॉपर्टी रहता है कोई भी डेटा को। तो जितना डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसको एज इट इज मेंशन होना चाहिए। अलग डेटा जब स्टोर कर रहे हैं एक जगह से दूसरा जगह ले रहे हैं तो उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फाइल सिस्टम जो सर्वर में है उस सर्वर अगर बंद हो जाए फिर भी सर्वर फिर से ओपन हो जाए तो फिर से वो फाइल हमें मिलना चाहिए। और कंसिस्टेंसी मतलब हमेशा डेटा जितने बार भी हम लोग अगर डेटा में चेंज नहीं करते हैं तो साल भर रखेंगे तो वो डेटा एज इट इज फॉर्म में रहेगा, कुछ उसमें करप्शन होने का चांसेस नहीं है। ये सब चार प्रॉपर्टी रहता है जो कोई भी डेटाबेस सिस्टम में मेंशन होता है, जो आप लोग आगे पढ़ोगे। मैं इसका एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूँ अभी। अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी सिक्योरिटी, जो हम देखते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड या फिर बहुत सारे टाइप के गेस्ट अकाउंट हम बनाते हैं। और कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। तो जो भी सिस्टम में कुछ रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स हो उसके कंट्रोल करना। जितने भी हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, रिसोर्स यूज कर रहे हैं, वो कहाँ पे कितना यूज हो रहा है। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो स्टार्ट टास्क मैनेजर में जाते हैं तो ये सब प्रोसेस हमें बताता है। अभी क्रोम में इतने सारे टैब चल रहे हैं इसलिए क्रोम का चल रहा है। उसके बाद वाकॉम मेरा जो टेबलेट है वो भी चल रहा है, तो विंडोज लॉगिन का प्रोसेस मैंने किया है, लॉगिन किया है, इसलिए उसका भी प्रोसेस चल रहा है। तो ये सारे जो प्रोसेस है वो ध्यान रखता है कि कितना मेमोरी ले रहा है, कितना रैम ले रहा है, प्रोसेस चल रहा है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, तो जो भी हम लोग, जैसे मैंने क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हाईलाइट हो रहा है, तो ये जो हाईलाइट होना ही चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ये सिस्टम। इट इज द हाउ कंपाइलर वर्क्स, ये हमने पहले ही दिखा था। सोर्स कोड लेता है, कंपाइल करता है, उसको मशीन कोड बनाता है और आउटपुट देता है। तो ये जो कंपाइलर है उसमें प्री प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, प्री प्रोसेसर, असेंबलर, उसके बाद उसके जो हमने देखा था प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब बहुत बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। तो ये सब डिफाइन करता है कि कैसे कंपाइलर काम कर रहा है। अभी इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर क्या है कि सोर्स कोड लेता है, उसको ऐसे फॉर्म में इंटरप्रेट करता है ताकि जो आउटपुट जिस तरह से हमें चाहिए वो हमें जनरेट हो। तो कंपाइलर के साथ क्या इंटरप्रेटर का डिफरेंस है वो हम इधर देखेंगे। मैं देख लेता हूँ सिलेबस, एक मिनट। हाँ, इंटरप्रेटर कमांड अभी यहाँ पे चल रहा है हम लोग। ओके, सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। A compiler takes an entire program and a lot of time to analyze the source code. तो कंपाइलर क्या है कि पूरा प्रोग्राम लेता है और उसको बहुत टाइम लगाता है उसको एनालाइज करने में। और जहाँ पे इंटरप्रेटर जो है हर एक लाइन इंडिविजुअली लेता है और ऑब्वियसली एक एक लाइन वो इंटरप्रेट करेगा तो उसमें समय कम लगेगा। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम अपने मेमोरी में ले लेता है और उसको कंटिन्यूअस उसको टोटल उसको एनालाइज करता है। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है। तो एक में समय ज़्यादा लगता है, एक में समय कम लगता है। तो compile code run faster while interpret code runs slower। तो कंपाइलर मतलब एंटायर प्रोग्राम को उसको एनालाइज करके उसके बाद एनालाइज देता है, तो ऑब्वियसली उसका कोड जो है
वो मतलब उसमें और कुछ प्रोसेस का जरूरत नहीं है, इसीलिए वो फास्ट रन करता है। इंटरप्रेटर जो है वो हर एक लाइन बाय लाइन एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, इसीलिए एक लाइन का डिपेंडेंस नेक्स्ट लाइन पे ऊपर है। इसलिए एक इंटरप्रेटेड प्रोग्राम अगर रन करे तो वो हमेशा टाइम स्लो लगता है। A compiler display all errors after compilation. If your code has mistakes, it will not compile, but the interpreter displays errors of each line one by one. The compiler जो है हम लोग C प्रोग्राम में देखेंगे कि जितने भी एरर्स हैं एक साथ वो डिस्प्ले कर देता है। मतलब जितने भी फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक जितने भी हमने एरर्स आया प्रोग्राम में वो सारे एक साथ डिस्प्ले करता है। लेकिन इंटरप्रेटर और अगर एरर आया फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन के बीच में कोई भी एरर आया तो कंपाइलर उसको मतलब एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करने देता जब तक हर एक एरर सॉल्व ना हो जाए। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, हर एक लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है और एरर हो तो भी वो हर एक लाइन का एरर दिखाता है। पहला लाइन का एरर दिखाएगा, उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो दूसरे लाइन में जाएगा, दूसरा लाइन का एरर दिखाएगा, तब तक पहला लाइन का एरर चला गया होगा। तो आपको हर एक लाइन एरर मिलता है, आपको तभी सॉल्व करना पड़ता है या फिर लिख के रखना पड़ता है। तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। इंटरप्रिटेशन डज नॉट रिप्लेस कंपाइलेशन कंप्लीटली। तो इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली कंपाइलेशन प्रोसेस को रिप्लेस नहीं करता है, क्योंकि कंपाइलेशन में टोटल प्रोग्राम एनालाइज होता है, उसमें समय कम लगता है और एरर एक साथ दिखाता है। तो इंटरप्रिटेशन लाइन बाय लाइन, तो ये टोटली रिप्लेस नहीं कर पाता है। लास्ट जो डिफरेंसेस है, कंपाइलर्स कैन कंटेन इंटरप्रेटर फॉर ऑप्टिमाइजेशन रीजन लाइक फास्टर परफॉर्मेंस एंड स्मॉलर मेमोरी फुटप्रिंट। कंपाइलर जो है वो इंटरप्रेटर ऑप्टिमाइजेशन रीजन के लिए जो भी मतलब एक जो प्रोग्राम है उसको कितना शॉर्ट में हम लोग बता सकते हैं वो परफॉर्म करता है, वो बताता है। तो कंपाइलर कैन कंटेन इंटरप्रेटर फॉर ऑप्टिमाइजेशन रीजन लाइक फास्टर परफॉर्मेंस एंड स्मॉलर मेमोरी फुटप्रिंट। तो ऑब्वियसली इंटरप्रेटर हर एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो इसकी उसका थोड़ा डिपेंडेंसी रहता है और कंपाइलेशन एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है, इसीलिए थोड़ा फास्ट है। तो कभी कभी अगर लाइन कंपाइलेशन में एक एक लाइन को हमें एग्जीक्यूट करना है, देखना है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर का भी हेल्प लेता है। टाइप्स ऑफ इंटरप्रेटर, बाइट कोड इंटरप्रेटर। बाइट कोड इंटरप्रेटर, ईच इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स विद ए बाइट and therefore byte code interpreter have up to 256 instruction। तो बाइट कोड मतलब जो भी हमने देखा था .c फाइल को .obj फाइल बनाया, तो ऐसे इंटरप्रेटर जो है हर एक इंस्ट्रक्शन जो है उसके इंटरप्रेटर के इन बाइट कोड इंटरप्रेटर ईच इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स विद ए बाइट। तो इंटरप्रेटर का जो हर एक इंस्ट्रक्शन है वो एक बाइट से चालू होता है। एक बाइट मतलब 8 बिट से चालू होता है और उसमें ऐसे 256 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये बाइट कोड हो गया। थ्रेडेड कोड इंटरप्रेटर में जितने भी पॉइंटर्स यूज होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। मतलब एक लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो उस लाइन का मान लो रेफरेंस कहीं और है, कोई दूसरे प्रोग्राम में है, तो वो एक पॉइंटर यूज करता है ताकि पॉइंटर यूज करता है और वो बताता है कि इसका रेफरेंस दूसरे प्रोग्राम में है। तो फिर वहां से सेकेंड लाइन से मान लो उसका रेफरेंस दूसरे प्रोग्राम में है, तो सेकेंड लाइन से वो दूसरे प्रोग्राम में जंप करता है। ऐसे थ्रेड की जैसा वो काम करता है। और दूसरे प्रोग्राम में जाया तो वहाँ पे भी हर एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। सो इस तरह से एग्जीक्यूट करता है। मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लो कि तुमने एक प्रोग्राम लिखा है, इसमें एक ऐसे बहुत सारे लाइन है, तो कंप्यूटर पहला एग्जीक्यूट किया, दूसरा एग्जीक्यूट किया, तीसरा में आया। अभी जो अभी तीसरा प्रोग्राम का जो रेफरेंस है वो मान लो दूसरे ये प्रोग्राम नंबर 1, ये प्रोग्राम नंबर 2, तो ये जो तीसरा प्रोग्राम है इसका रेफरेंस दूसरे प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन में। तो इतना एग्जीक्यूट करके वो आगे नहीं जाएगा, वहां पे जाएगा, यहाँ पे पहला एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा। तो ये हो गया थ्रेडेड कोड इंटरप्रेटर। ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री इंटरप्रेटर। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री इंटरप्रेटर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री इंटरप्रेटर जैसे मान लो, हाँ, तो जैसे मान लो एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन तुमने लिखा है, तो इसके इंस्ट्रक्शन जो है वो मान लो इसके चाइल्ड मतलब उसके इंस्ट्रक्शन मान लो और एक प्रोग्राम में है, तो वो क्या करेगा, एक ट्री बनाएगा। इस प्रोग्राम का रेफरेंस लेके एक ट्री बनाएगा और उसके इस प्रोग्राम के
रेफरेंस मान लो पहला प्रोग्राम है, तो वहां से दूसरा लेके इसका एक ट्री बनाएगा, तो ये एक लिंक हो गया। और इसका मान लो और एक रेफरेंस और एक प्रोग्राम में है, मतलब यहाँ से और एक रेफरेंस है, तो ये लेके वो इसका एक ट्री बनाएगा। मतलब ये 1 हो गया, इसका एक रेफरेंस बनाएगा 2, इसका एक रेफरेंस बनाएगा 3। ये तीनों अलग अलग प्रोग्राम हो गए। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी प्रोग्राम है, तो ए प्रोग्राम का रेफरेंस में गया बी प्रोग्राम में और बी प्रोग्राम के रेफरेंस में गया सी प्रोग्राम में। तो ऐसा करके वो एक ट्री बनाएगा। ये सी नॉर्मली इधर आना चाहिए, हाँ, तो सी नॉर्मली इधर आना चाहिए। तो ये हो गया। तो ये एक तुम्हारा क्या हो गया, ये एक ट्री जैसा हो गया, ये तुम्हारा एक टोटल ट्री जैसा हो गया। तो ये एक ऐसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। ये समझ में आया क्या सबको? हेलो Yes, sir. हेलो, ओके। Yes, sir. अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया है? No, Yes, sir. Abstract syntax tree interpreter का कोई एग्जांपल? ओके, तो जैसे मान लो कि ये एक प्रोग्राम है जो कि प्रोग्राम ए है, ये एक प्रोग्राम है जो कि प्रोग्राम I mean like कौन सा लैंग्वेज में वो आता है, कौन सा इंटरप्रेटर? उसका इंटरप्रेटर का अलग इंस्ट्रक्शन है, जो मैंने पहले भी बताया था कि उस इंटरप्रेटर के अलग से, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 8 बाइट लेता है। 8 बाइट मतलब 1 बाइट लेता है, सॉरी 1 बाइट लेता है, मतलब 8 बिट्स लेता है। और ऐसे 256 इंस्ट्रक्शन है, तो उसके इंटरप्रेटर का अलग लैंग्वेज बनता है। वो मतलब कोई भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, लेकिन वो लिखने का उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा रहता है। मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन में 1 बाइट रहता है और 1 बाइट 8 बिट का रहता है। ऐसे 256 इंस्ट्रक्शन रहते हैं। तो सिंटेक्स ट्री इंस्ट्रक्शन में क्या है, मान लो एक प्रोग्राम है और बी एक प्रोग्राम में, और मान लो सी एक प्रोग्राम है। तो मान लो ए एग्जीक्यूट किया, उसका रेफरेंस बी प्रोग्राम में गया, और बी एग्जीक्यूट किया, उसका रेफरेंस सी प्रोग्राम में। तो वो क्या करेगा, ए प्रोग्राम के जो फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन है वो जाएगा और वहां से वो गया बी प्रोग्राम में। बी प्रोग्राम में मान लो उसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उसका रेफरेंस है, या फिर मान लो उसके थर्ड इसमें, और बी से मान लो वो सी में गया और सी में मान लो उसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा करके एक ट्री बना रहा है। मतलब एक इंस्ट्रक्शन से रेफर करके दूसरे प्रोग्राम में गया, दूसरे प्रोग्राम से रेफर करके तीसरे प्रोग्राम में गया। समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग बुक से पढ़ना चालू कर दो। मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ।